Yogi Surajnath with Gorakh Sabadi, Sabadi number 177. ūbhā baiṭhā sūtā lījai, kabahū cita bhanga न kījai, anahada sabada gagana gājai, pyaṇḍa paṛai to sadguru lājai. ūbhā baiṭhā sūtā lījai, kabahū cita bhanga न kījai, anahada sabada gagana gājai, pyaṇḍa paṛai to sadguru lājai. Translation: behold, while standing, sitting, sleeping, don't ever break awareness. The unbound sound rumbles in the inner heavens. If the body falls, Sadguru is dismayed. Some explanation both in Hindi and English. In Gorakh Nath Siddhas, apart from bhava feeling sensations, meditating on the Nath sounds is also prescribed, and there are many sabdis referring to the Nath, working on, meditating on Nath. Nath means sound, sounds, sounding, that goes on its own in nature around, or that is being felt within. Sounds are always very many sounds. It is never one particular sound, because sound, sensations, vibrations are what the basic moment of the consciousness and life as a whole is. So it's a matter of common sense to understand even that these vibrations, the sounds, the sensations cannot be one particular. They are bound to be many, varying, changing, impermanent, transient, moving. So observation of sounds that we feel, that we hear, whether outside or within, through continuation of working on sadhana, the difference between outer sounds and inner sounds is finished, diminished. There is just sounding and listening of the sounding. That is meditation. However, if this sadhana is done as earlier said in Sabdi number 135, that if you work on anahada, on sound, on sounding and sensations, keeping in your mind liberation for the self, for ego center, then for the ego center, no liberation or nirvana or mukti is possible. For the center, ego center, for the I-ness in any form, whether it is observer, drashta, sakshi or whatever, only becoming is possible. This needs to be understood from the very beginning, looking into facts of life as it is, not being in imagination anyway. Here, that is also by the way, let's understand that, let's know that these traditionalists talk much about this Om and Om recitation and Om sound and like that. But the Om sound is nothing to do while working on the sadhana of Nath, while working on Nath, on sounding. To give importance to any particular sound, whether it is Om, Amin, Rim, Hum, etc., is futile. He is not insight, he is not common sense, he is not understanding, he is being cornered in some tradition, belief, and that way. Even if you experience something, you will always experience what you believe and nothing else, and this invalidates your experience, as the Siddhas say. In Hindi, गोरख नाथ और नाथ सिद्धों की साधनाओं में अर्थात मूलभूत जो सैद्धांतिक बातें हैं, अलग संज्ञान है, यथाभूत सदर्शन है, शून्यता है, विचार की शून्यता नहीं, समाधि की शून्यता नहीं, अलग संज्ञान के साथ यथाभूत सदर्शन की शून्यता, और दर्शन की अग्नि में चित्त संस्कारों का चित्त प्रवाह की निर्जरा अवधूनन, भाव पौना वेदना की अवधूनन, और एक निर्वाण गति, पल पल निर्वाण गति। इसमें साधना के लिए, यथाभूत सदर्शन के लिए, जैसे कि
अस्तित्व गति में भीतर बाहर तरंग नाद वेदना, यही बात मूलभूत होती है। एक ही बात के आयाम है अलग अलग। सो तरंग कहे, वेदना कहे, नाद साउंडिंग कहे, एक ही बात है। तो ये एस्पेक्ट्स होने से कोई साउंडिंग वेदना को महत्व दे सकता है, कोई तरंग वेदना तरंगों को महत्व दे सकता है, कभी कोई नाद साउंडिंग को भी महत्व दे सकता है। ठीक है, जैसा भी है, मगर यथाभूत सदर्शन और भाव पौना की उसमें साथ साथ दर्शन भी चले, तो ये मूलतः भाव पौना ही जीवन गति है, जिसके वेदना तरंग नाद आयाम है, वेदना मूलभूत है। सो नाद के ऊपर साधना करने से कर सकता है कोई कोई नाद के ऊपर साधना, मगर जैसे कि गोरख शब्दी नंबर 135 में बताया गया है कि यदि नाद और वेदना को, नाद बिंद नाद वेदना के प्रति, साउंडिंग्स एंड साउंड्स एंड सेंसेशंस के प्रति अहम केंद्रीय होकर के यदि कोई साधना करते, अहम को मोक्ष मुक्ति की इच्छा रखते हुए, तो अहम के लिए कुदरतन भव ही संभव है, मोक्ष मुक्ति निर्वाण कभी नहीं। भव ही संभव है, बिकमिंग ही संभव है। यह समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह भी समझना ज़रूरी है कि नाद साउंडिंग यह निसर्गतः अनंत नाद है, अनंत तरंग है, अनंत वेदनाएं हैं, अनंत भाव पौनाएं हैं। तो जैसे हम उसको सुनते हैं, और नाद की साधना में शुरुआत में आप बाहर नाद साउंडिंग नाद बाहर में सुनते हैं, और भी कभी भीतर में भी सुनते हैं, मगर साधना की गति में बाहर और भीतर का फर्क मिट जाता है, और नाद की जानकारी, नाद के ऊपर ध्यान, नाद की सुनना, नाद का सुना जाना, देखा जाना, सुना जाना होता है, और उसमें देखने वाला अहम भाव भी दृष्टा हो तो उसका भी देखा जाना होता है। ये समझना जरूरी है। अदरवाइज अन्यथा दृष्टा को, अहम भाव को साक्षी बनाकर, दृष्टा बनाकर किसी ऊंचे पायदान में बिठा दो और उसके लिए मोक्ष मुक्ति की कामना करो तो संभव ही नहीं। उसके लिए भव ही संभव है, अहम का मरना जरूरी है। सो नाद के ऊपर साधना करें, वेदना के ऊपर करें, भाव पौना कुशलता के साथ साधना करें। साधना कोई भी हो, सैद्धांतिकता में फर्क नहीं होता है। साधना अनंत हो सकती है। जो काम कर रहे हैं वो भी ध्यान देकर काम करे तो एक साधना है, भले गंभीरता से ना हो, मगर वो भी एक साधना है, वो भी साधना की गति है। सो सैद्धांतिकता जैसा कि अलग संज्ञान है, ज्ञात की जगह व मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता की बात, ये मूलभूत है। उसके यथाभूत सदर्शन है, भाव पौना वेदना नाद बिंद तरंग का दर्शन, यथाभूत जो भी महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, उसका दर्शन, उसका ऑब्जर्वेशन, उसका दर्शन ही योगी शिव की काया यानी ऑस्पिशियस बॉडी, मंगल। शिव मतलब कोई शिव शंकर आदि नहीं, मंगल, प्रेम, दया, करुणा, इस तरह से। तो जो भी दर्शनीय है उसको जीवन गति की समझ होती है। और सो चित्त अवधूनन के साथ में जो भाव पौना प्रवाह एक दूसरे के साथ जुड़ा है, भीतर बाहर है, तो साहजिक है व्यक्ति से वो सामान्यता के स्तर पर होता है, सामान्यता से भी उठ करके दर्शन की स्थिति में यानी शून्यता के स्तर पर होता है। तो व्यवहार के लिए वो अपने आप को अलग देखे, कुछ बातें जैसी भी हो व्यवहार के लिए, मगर चैतसिक स्तर पर वो अलग नहीं होता है। हम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, सामान्यता होती है, और उसमें भी सामान्यता से भी विचार की बात होती है, उससे भी ऊपर उठ करके विचार के काल के परे, टाइम के परे शून्यता, दर्शन और शून्यता एक ही बात है। अलग संज्ञान के साथ यथाभूत सदर्शन चैतसिक शून्यता है। चेतन और शून्यता, कोई समाधि शून्यता अलग बात है, दर्शन शून्यता अलग बात है, या इसको ऐसे कहे कि ध्यान समाधि अलग बात है, ध्यान बोधि अलग बात है। ध्यान समाधि चित्त विश्रांत देने वाली बात है, अच्छी बात है, मगर वो चित्त अवधूनन करने की क्षमता उसमें नहीं है। ध्यान बोधि में चित्त अवधूनन की क्षमता है, वो महत्वपूर्ण है, और उसमें अहम भाव के लिए अहम भाव का भी देखा जाना होता है, भयानुराग आदि क्रोध भीति करुणा प्रीति का भी देखा जाना होता है। और जो मूलतः सब तरंग होते हैं, नाद होते हैं, वेदना होती है, और ये तरंग हो, नाद साउंड्स हो, वेदना एक ही बात के आयाम होते हैं। सो आप साधना में कभी वेदना पर, भाव पौना पर, कभी तरंगों पर, तरंग वेदना एक ही बात है, और कभी नाद पर भी आप, कभी नूर पर भी, कलर जब भी आप देखते हैं तो अनंत नूर महसूस होते हैं। आपको अकमन करके भी कोई अंधुक धुंधुक कुछ भी जैसा महसूस होता है वैसा उसी तरह से कल्पना नहीं करना है। यह दूसरी बात ये भी समझना महत्वपूर्ण है
कि नाद के नाम पर कोई परंपरा वाले अपने कोई विशेष शब्द होते, कोई नाम होते, कोई मंत्र होते हैं, जैसे ओम है, अम है, ह्रीम है, अमीन है, आदि आदि को विशेष प्रचारित करते हैं और ये मूलभूत नाद वगैरह कहेंगे। ऐसा नाद या वेदना, नाद तरंग कुदरतन निसर्गतः अनंत होना लाजमी है। वो कोई एक विशिष्ट नाद अस्तित्व में कभी होता ही नहीं है। अनंत नाद गति होती है, अनंत भाव पौना होते, अनंत वेदना तरंग होते हैं। वही काल नाद नाम रूप की गति है और उसी की कल्पना में नहीं जाना, उसी यथाभूत सदर्शन प्रवाह के प्रति दर्शन, चेतनता, वही ध्यान बोधि की बात है। उसी में चित्त अवधूनन की क्षमता है। लक्षण ज्ञान के साथ यथाभूत सदर्शन शून्यता है, उसी में ही अवधूनन होता है। तो साधना के लिए कभी आप नाद को भी महत्व देकर साधना करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर उसमें भी अहम चित्त, अहम को भाव पौना, अहम भाव को, भयानुरागति को भी देखा जाना और उसकी निर्जरा महसूस हो। नहीं तो नाद के ऊपर साधना करे और वेदना के ऊपर साधना करे और वो अहम भाव के लिए मोक्ष मुक्ति चाहे तो वो अहम के लिए किसी भी हालत में वो उसको साक्षी करे, दृष्टा करे, ऊंचे पायदान पर बिठाए। भव ही संभव है, बिकमिंग ही संभव है, निर्वाण मोक्ष मुक्ति कभी नहीं। सो यथाभूत सदर्शन और अहम का मरना, दर्शन में अहम भाव का भी देखा जाना होता है, भयानुरागता रागादि का भी देखा जाना होता है, नाद के साथ में जो भी नाद महसूस होते हैं उसमें। तो इस तरह से जागत बैठे सूता, वाइल सिटिंग, स्लीपिंग, वाइल सिटिंग, वाइल बीइंग wakeful in day-to-day life, while sitting, while walking, while sleeping, जागत बैठे सूता, जैसे कि शब्द में कहा है। ūbhā baiṭhā sūtā lījai, while standing, sitting, sleeping, खड़े रहते हुए, बैठे होते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सोने के टाइम हमेशा ध्यान करते रहे, प्रेजेंस ऑफ द माइंड से रहे, वर्तमानता से रहे, अलग संज्ञान सु यथाभूत सदर्शनता से रहे, कुशलता से के साथ भाव पाना, इस वेदना भाव पाना या नाद जो भी बाहर भीतर महसूस होते हैं उस तरह से बारीकी के साथ में, यही वर्तमानता का जीना है। हमारे चित्त चेतना में दो ही मूलभूत क्षमता है, विचार करना, थिंकिंग, और ध्यान, प्रेजेंस ऑफ द माइंड, अटेंशन। सो अटेंशन को समझ करके जिए, विचार का इस्तेमाल करे दुनियादारी में, वो समझ है ना, तो विचार में डिज़ाइन करने की क्षमता है, इसके लिए इसीलिए विचार ईश्वर के नाम पर राष्ट्रीय ईश्वर ही डिज़ाइन करता चले। व्हाट नॉनसेंस, विचार काल है, इस पल की सच्चाई पर नहीं आ सकता, तो ईश्वर को आपको पहुँचाएगा, सवाल ही नहीं। वेयर वी आर, धर्म के नाम पर क्या बातें दुनियादारी में। और ये इस तरह की मूलभूत बातें यदि आप जानते हैं, समझते हैं कि हमारी चित्त चेतना में दो ही क्षमता है, ये एक विचार करना और दूसरा प्रेजेंस ऑफ द माइंड, अटेंशन, ध्यान। विचार करने में विचार की गति को तीव्र करना, विचार की गति को कम करना, विचार की गति का स्थगन करना, यानी कि समाधि भी विचार के, इसमें विचार के अनेक प्रकार के सब्जेक्ट विषय, फिलॉसफी, केमिस्ट्री, रसायन, औषधि, पता नहीं, खेती और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह अनेक बातें हैं विचार के क्षेत्र में। मगर विचार प्रेजेंट पर पल पर कभी नहीं आ सकता। और वो ये जो मूलभूत वर्जित क्षमता है हमारे अंदर में, पाक प्योर क्षमता है अटेंशन की, उसको हम समझे और जिए। और दैट्स व्हाट गोरख सेज, बुद्ध सेज, सिद्ध बुद्ध सेज। और आप कहीं भी जाए, बहुत बात करने की कुशलता, आप जो ईश्वर को मानता है नहीं मानता है, नॉनसेंस थिंग्स, मानने न मानने वाले दोनों भी विचार में होते हैं, प्रेजेंस ऑफ द माइंड से नहीं होते, साइलेंट पैशन से, शांत पुकार के साथ परम सत्य के लिए नहीं होते। और वो विचार में अहंकार की गले की हड्डी बन जाती है, परंपरा वगैरह वगैरह, वो मान्यताएं, और वो जो भी समझ जाए वो इससे मुक्त होता है। उसको हड्डी से मुक्त होने के लिए कोई कुछ करना नहीं पड़ता है। फिजिकली कोई हड्डी फंस जाए तो डॉक्टर वगैरह उसको करेगा, मगर मेंटली साइकोलॉजिकली कोई हड्डी फंस गई है किसी परंपरा की, मान्यता की, तो वो समझ जाए उससे मुक्त है। बात सादी है। दिस इज इट।